بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل انفو میں خوش آمدید۔ ہمارا جسم پرانا ہے لیکن اس میں ہمیشہ نیا خون دوڑتا رہتا ہے۔ اس نئے خون پر زندگی قائم ہے۔ دنیا کے قدیم نظام میں یہ نیا پن اس کے ایک ایک ذرے میں، ایک ایک ٹہنی میں، ایک ایک قطرے میں، تار میں چھپے ہوئے نغمے کی طرح گونجتا رہتا ہے۔ اور یہ 100 سال کی بڑھیا آج بھی نئی دلہن بنی ہوئی ہے۔ جب سے لالا ڈنگا مل نے نئی شادی کی ہے، ان کی جوانی سڑے نو اود کر گئی ہے۔ جب پہلی بیوی بقید حیات تھی، وہ بہت کم گھر رہتے تھے۔ صبح سے 10-11 بجے تک تو پوجا پاٹ ہی کرتے رہتے تھے، پھر کھانا کھا کر دکان چلے جاتے، وہاں سے 1 بجے رات کو لوٹتے اور تھکے مانڈے سو جاتے۔ اگر لیلا کبھی کہتی کہ ذرا اور سویرے آ جائے کرو تو بگڑ جاتے، تمہارے لیے کیا دکان بند کر دوں یا روزگار چھوڑ دوں؟ یہ وہ زمانہ نہیں ہے کہ ایک لوٹا جل چڑھا کر لکشمی کو خوش کر لیا جائے۔ آج کل لکشمی کی چوکھٹ پر ماتھا رگڑنا پڑتا ہے، تبھی ان کا منہ سیدھا نہیں ہوتا۔ لیلا بیچاری خاموش ہو جاتی۔ ابھی 6 مہینے کی بات ہے، لیلا کو زور کا بخار تھا۔ لالا جی دکان پر چلنے لگے تو لیلا نے ڈرتے ڈرتے کہا، دیکھو میری طبیعت اچھی نہیں ہے، ذرا سویرے آ جانا۔ لالا جی نے پگڑی اتار کر کھونٹی پر لٹکا دی اور بولے، اگر میرے بیٹھے رہنے سے تمہارا جی اچھا ہو جائے تو میں دکان نہ جاؤں گا۔ لیلا رنجیدہ ہو کر بولی، میں یہ کب کہتی ہوں کہ تم دکان نہ جاؤ، میں تو ذرا سویرے آ جانے کو کہتی ہوں، تو کیا میں دکان پر بیٹھا موج کرتا ہوں؟ لیلا کچھ نہ بولی۔ شوہر کی یہ بے اعتنائی اس کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ ادھر کئی دن سے اس کا دل روز تجربہ ہو رہا تھا، اس گھر میں اس کی قدر نہیں ہے۔ اگر اس کی جوانی ڈھل چکی تھی تو اس کا کیا قصور تھا؟ کس کی جوانی ہمیشہ رہتی ہے؟ لازم تو یہ تھا کہ 55 سال کی رفاقت اب ایک گہرے روحانی تعلق میں تبدیل ہو جاتی، جو ظاہر ہے بے نیاز رہتی ہے، جو عیب کو بھی حسن دیکھنے لگتی ہے، جو پکے پھل کی طرح زیادہ شیریں، زیادہ خوشنما ہو جاتی ہے۔ لیکن لالا جی کا تاجر دل ہر ایک چیز کو تجارت کے ترازو پر تولتا تھا۔ بوڑھی گائے جب نہ دودھ دے سکتی تو بچے تو اس کے لیے گوشالہ سے بہتر کوئی جگہ نہیں تھی۔ ان کے خیال میں لیلا کے لیے بس اتنا ہی کافی تھا کہ وہ گھر کی مالکن بنی رہے، آرام سے کھائے پہنے پڑی رہے۔ اسے اختیار ہے، چاہے جتنے زیور بنوائے، چاہے جتنی خیرات اور پوجا کرے، روزے رکھے، صرف ان سے دور رہے۔ فطرت انسانی کی نرنگیوں کا ایک کرشمہ یہ تھا کہ لالا جی جس دلجوئی اور حرص سے لیلا کو محروم رکھنا چاہتے تھے، خود اسی کے لیے والہانہ سرگرمی سے متلاشی رہتے تھے۔ لیلا 40 کی ہو کر بوڑھی سمجھ لی گئی تھی، مگر وہ 45 سال کی ہو کر ابھی بھی جوان تھی۔ جوانی کے ولولوں اور مسرتوں سے بے قرار لیلا سے اب انہیں ایک طرح کی کراہیت ہوتی تھی، اور وہ غریب جب اپنی خامیوں کی حسرت ناک احساس کی وجہ سے فطری بے رحمیوں کے ازالے کے لیے رنگ و روغن کی آڑ لیتی، تو وہ اس کی بوال ہوسی سے اور بھی متنفر ہو جاتے۔ خوش 7 لڑکوں کی تو ماں ہو گئی، بال کھچڑی ہو گئے، چہرہ دھلے ہوئے فلالین کی طرح پرشکن ہو گیا، مگر آپ کو ابھی بھی محاورہ اور سندور مہندی اور اگٹن کی ہوس باقی ہے۔ عورتوں کی بھی کیا فطرت ہے، نہ جانے کیوں آرائش پر اس قدر جان دیتی ہیں۔ پوچھو اب تمہیں اور کیا چاہیے؟ کیوں نہیں دل کو سمجھا لیتی کہ جوانی رخصت ہو گئی اور ان تدبیروں سے اسے واپس نہیں بلایا جا سکتا؟ لیکن وہ خود جوانی کا خواب دیکھتے رہتے تھے۔ طبیعت جوانی سے سیر نہ ہوتی۔ جاڑوں میں کشتوں اور ماجنوں کا استعمال کرتے رہتے، ہفتے میں 2 بار خضاب لگاتے اور کسی ڈاکٹر سے بندر کے غدودوں کا استعمال سے متعلق خط و کتابت رکھ رہے تھے۔ لیلا نے انہیں شش و پنج کی حالت میں کھڑا دیکھ کر مایوسانہ انداز سے کہا، کچھ بتلا سکتے ہو کہ کتنے بجے آؤ گے؟ لالا جی نے ملائم لہجے میں کہا، تمہاری طبیعت آج کیسی ہے؟ لیلا کیا جواب دے؟ اگر کہتی ہے بہت خراب ہے تو شاید ہی حضرت یہاں بیٹھ جائیں اور اسے جلی کٹی سنا کر اپنے دل کا بخار نکالیں۔ اگر کہتی ہے اچھی ہوں تو بے فکر ہو کر 2 بجے رات کی خبر لے آئیں۔
डरते डरते बोली, अब तक तो अच्छी थी लेकिन अब कुछ भारी हो रही है। लेकिन तुम जाओ, दुकान पर लोग तुम्हारे मुंतजर होंगे, मगर इस शोर के लिए ये 1-2 ना बजा देना। लड़के सो जाते हैं, मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगता, तबीयत घबराती है। सेठ जी ने लहजे में मोहब्बत की चाशनी देकर कहा, 12 बजे तक आ जाऊंगा जरूर। लैला का चेहरा उतर गया। 10 बजे तक नहीं आ सकते? 11:30 बजे से पहले किसी तरह नहीं, 10:30 भी नहीं। अच्छा 11 बजे। 11 पर मुसालिहत हो गई। लाला जी वादा करके चले गए, लेकिन शाम को एक दोस्त ने मुजरा सुनने की दावत दी। अब बेचारे इस दावत को कैसे रद्द करते? जब एक आदमी आपको खातिर से बुलाता है तो ये कहाँ की इंसानियत है कि आप इसकी दावत नामंजूर कर दें। वो आपसे कुछ मांगता नहीं, आपसे किसी तरह की रियायत का ख्वास्तगार नहीं, महज दोस्ताना बेतकल्लुफी से आपको बज़म में शिरकत की दावत देता है। आप पर इसकी दावत कबूल करना जरूरी हो जाता है। घर के जंजाल से किसी तरह फुर्सत मिलेगी। कभी कोई बीमार है, कभी मेहमान आए हैं, कभी पूजा है, कभी कुछ कभी कुछ। अगर आदमी ये सोचे कि घर से बेफिक्र होकर जाएंगे तो इसे सारे दोस्ताना मरासिम मुनक़ते कर लेने पड़ेंगे। इसे शायद ही घर से कभी फरागत नसीब हो। लाला जी मुजरा सुनने चले गए तो 2 बजे लौटे। आते ही अपने कमरे की घड़ी की सुइयां पीछे कर दी, लेकिन 1 घंटे से ज्यादा की गुंजाइश किसी तरह ना निकाल सके। 2 को 1 तो कह सकते थे, घड़ी की तेजी के सर इल्जाम रखा जा सकता था, लेकिन 2 को 12 नहीं कह सकते थे। चुपके से आकर नौकर को जगाया। खाना खा कर आए थे, अपने कमरे में जाकर लेट गए। लैला इनकी राह देखती, हर लम्हा दर्द और बेचैनी की बढ़ती हुई शिद्दत का एहसास करती। न जाने कब सो गई थी। इसको जगाना सोए फितना को जगाना था। गरीब लैला इस बीमारी से जांबर न हो सकी। लाला जी को इसकी वफात का बेहद रूहानी सदमा हुआ। दोस्तों ने ताजियत के तार भेजे। कई दिन ताजियत करने वालों का तांता बंधा रहा। एक रोज अखबार ने मरने वाले की कसीदा ख्वानी करते हुए इसकी दिमागी और इखलाकी खूबियों की मुबालगा अमेज तस्वीर खींची। लाला जी ने इन सब हमदर्दों का दिल शुक्रिया अदा किया और इनके खुलूस और वफादारी का इजहार जन्नत नसीब लैला के नाम से लड़कियों के लिए 5 वजीफे कायम करने की सूरत में नमूदार हुआ। वो नहीं मरी साहब, मैं मर गया। जिंदगी की शमा हदायत गुल हो गई। अब तो जीना और रोना है। मैं तो एक हकीर सा इंसान था। न जाने किस कारखेज के सिले में मुझे ये नेमत अल्लाह ने अता की थी। मैं तो इसकी परस्तिश करने के काबिल भी न था, वगैरह। 6 महीने की इज्जत और नफ्स-कशी के बाद लाला डंगा मिलने दोस्तों के इसरार से दूसरी शादी कर ली। आखिर गरीब क्या करते? जिंदगी में एक रफीक की जरूरत तो होती ही है जब पाँव में खड़े होने की ताकत नहीं रहती। जब से नई बीवी आई है, लाला जी की जिंदगी में हैरत अंगेज इनकलाब हो गया है। दुकान से अब इन्हें इस कदर इन्हमाक नहीं है। मुतवातर हफ्तों न जाने किसी से भी इनके कारोबार में कोई हर्ज वाक़ नहीं होता। जिंदगी से लुत्फ अंदोज होने की सलाहियत जो इनमें रोज बरोज मुजमल होती जा रही थी, अब ये तरशाह पाकर फिर से सरसब्ज हो गई है। इसमें नई नई कंपनी फूटने लगी हैं। मोटर नया आ गया है, कमरे नए फर्नीचर से आरास्ता कर दिए गए हैं, नौकरों की तादाद में माकूल इजाफा हो गया है, रेडियो भी लगा दिया गया है। लाला जी की बूढ़ी जवानी जवानों से भी ज्यादा पुरजोश और वलवला अंगेज हो रही है। इस तरह जैसे बिजली की रोशनी चांद की रोशनी से ज्यादा शफाफ और नजर फरेब होती है। लाला जी को इनके अहबाब इनकी इस जवानी तबी पर मुबारकबाद देते हैं तो वो तफाखुर के अंदाज से कहते हैं, भाई हम तो हमेशा जवान रहे और हमेशा जवान रहेंगे। बुढ़ापा मेरे पास आए तो इसके मुंह पर स्याही लगाकर गधे पर उल्टा सवार करके शहर बदर कर दूंगा। जवानी और बुढ़ापे को लोग ना जाने उम्र से क्यों मंसूब करते हैं। जवानी का उम्र से इतना ही ताल्लुक है जितना मजहब का इखलाक से, रुपए का ईमानदारी से, हुस्न का आराइश से। आजकल के जवानों को आप जवान कहते हैं? अरे साहब, इनमें 1000 जवानियों को अपनी जवानी के 1 घंटे से ना तब्दील करूं। मालूम होता है कि जिंदगी में कोई दिलचस्पी ही नहीं, कोई शौक ही नहीं। जिंदगी क्या है? गले में पड़ा हुआ ढोल है।
यही अल्फाज वो कुछ जरूरी तरमीम के बाद आशा देवी के लोह दिल पर नक्श करते रहते हैं। इससे हमेशा सिनेमा, थिएटर, सैर, दरिया के लिए इसरार करते हैं, लेकिन आशा ना जाने क्यों इन दिलचस्पियों से जरा भी मुतासिर नहीं। वो जाती तो है मगर बहुत इसरार के बाद। एक दिन लाला जी ने आकर कहा, चलो आज बजरे पर दरिया की सैर कराएं। बारिश के दिन थे, दरिया चढ़ा हुआ था, अबर की कितारें बैनुल अक़वामी फौजों की सी रंग बिरंग वर्दियां पहने आसमान पर कवायद कर रही थी। सड़क पर लोग मलार और 12 मासे गाते चले जा रहे थे। बागों में झूले पड़ गए थे। आशा ने बेदिली से कहा, मेरा तो जी नहीं चाहता। लाला जी ने तादीब आमेज इसरार से कहा, तुम्हारी कैसी तबीयत है जो सैरो तफरी के जानिब माइल नहीं होती। आप जाएं, मुझे और कई काम करने हैं। काम करने को ईश्वर ने आदमी दे दिए हैं, तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं। महाराज अच्छा सालन नहीं पकाता, आप खाने बैठेंगे तो यूं ही उठ जाएंगे। आशा अपनी फुर्सत का बेशतर हिस्सा लाला जी के लिए अनवा इकसाम के खाने पकाने में सर्व करती थी। किसी से सुन रखा था कि खास उम्र के बाद मर्दों की जिंदगी की खास दिलचस्पी लज्जत जुबान से रह जाती है। लाला जी के दिल की कली खुल गई। आशा को इनसे किस कदर मोहब्बत है, वो सैर को इनकी खिदमत पर कुर्बान कर रही थी। एक लैला थी कि कहीं जाऊं पीछे चलने को तैयार। पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाता था, बहाने करने पड़ते थे। ख्वामख्वाह सर पर सवार हो जाती थी और सारा मजा किरकिरा कर देती थी। बोले, तुम्हारी भी अजीब तबीयत है, अगर एक दिन सालन बेमजा ही रहा तो ऐसा क्या तूफान आ जाएगा। तुम इस तरह मेरे रईसाना चौंचलों का लिहाज करती रहोगी तो मुझे बिल्कुल आराम तलब बना दोगी। अगर तुम ना चलोगी तो मैं भी ना जाऊंगा। आशा ने जैसे गले से फंदा छुड़ाते हुए कहा, आप भी तो मुझे इधर उधर घुमाकर मेरा मिजाज बिगाड़ देते हैं। ये आदत पड़ जाएगी तो घर के धंधे कौन करेगा। लाला जी ने फ्याजाना लहजे में कहा, मुझे घर के धंधों की जरा बराबर परवाह नहीं, बाल की नोक बराबर भी नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा मिजाज बिगड़े और तुम इस घर की चक्की से दूर हो। और मुझे बार बार आप क्यों कहती हो? मैं चाहता हूँ तुम मुझे तुम कहो, मोहब्बत की गालियां दो, गुस्से की सलावातें सुनाओ, लेकिन तुम मुझे आप कहकर जैसे देवता के सिंहासन पर बिठा देती हो। मैं अपने घर में देवता नहीं, शरीर छुआ कर बनकर रहना चाहता हूँ। आशा ने मुस्कुराने की कोशिश करके कहा, ए नौज, भला मैं आपको तुम कहूंगी, तुम बराबर वालों को कहा जाता है या बड़ों को? मेनम जी ने 1 लाख के घाटे की पुरमलाल खबर सुनाई होती तब भी लाला जी को शायद इतना सदमा ना होता जितना कि आशा के इन भोले भाले अल्फाज से हुआ। इनका सारा जोश, सारा वलवला ठंडा पड़ गया, जैसे बर्फ की तरह मुंजमद हो गया। सर पर बाकी रखी हुई रंगीन फूलदार टोपी, गले में पड़ी हुई जोकिये रंग की रेशमी चादर, वो तंजेब का बेलदार कुर्ता जिसमें सोने के बटन लगे हुए थे, ये सारा ठाठ जैसे मुज़हक्का खेज मालूम होने लगा, जैसे सारा नशा किसी मंत्र से उतर गया हो। दिल शिकस्ता होकर बोले, तो तुम्हें चलना है या नहीं? मेरा जी नहीं चाहता। तो मैं भी ना जाऊं? मैं आपको कब मना करती हूँ? फिर आप? आशा ने जैसे अंदर से जोर लगाकर कहा, तुम, और इसका चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। हाँ, इस तरह तुम कहा करो। तो तुम नहीं चल रही हो? अगर मैं कहूँ कि तुम्हें चलना पड़ेगा तब चलूंगी। आपके हुक्म की पाबंदी मेरा फर्ज है। लाला जी हुक्म ना दे सके, फर्ज और हुक्म जैसे लफ्ज से इनके कानों में खराश सी होने लगी। खुशियाने होकर बाहर चले। इस वक्त आशा को उन पर रहम आ गया। बोली, तो कब तक लौटोगे? मैं नहीं जा रहा हूँ। अच्छा, तो मैं भी चलती हूँ। जिस तरह कोई जिद्दी लड़का रोने के बाद अपनी मतलूबा चीज पाकर इसे पैरों से ठुकरा देता है, इस तरह लाला जी ने रोना मुंह बनाकर कहा, तुम्हारा जी नहीं चाहता तो ना चलो, मैं मजबूर नहीं करता। आप नहीं, तुम बुरा मान जाओगे। आशा सैर करने गई, लेकिन अमंग से नहीं, जो मामूली साड़ी पहनी हुई थी वही पहने चली खड़ी हुई। ना कोई नफीस साड़ी, ना कोई जेवर, ना कोई श्रृंगार, जैसे बेवा हो। ऐसी ही बातों से लाला जी दिल में झंझला उठे थे। शादी की थी जिंदगी का लुत्फ उठाने के लिए, झलमलाते हुए चिराग में तेल डालकर इसे रोशन करने के लिए।
अगर चिराग की रोशनी तेज ना हुई तो तेल डालने से क्या फायदा। न जाने इसकी तबीयत क्यों इस कदर खुश्क और अफसरदा है, जैसे कोई ओसर का दरख्त हो कि कितना ही पानी डालो इसमें हरी पत्तियों के दर्शन ही नहीं होते। जुड़वा जेवरों के भरे हुए संदूक रखे हैं, कहाँ कहाँ से मंगवाए, दिल्ली से, कलकत्ते से, फ्रांस से। कैसी कैसी बेशकीमत साड़ियां रखी हुई हैं, एक नहीं सैकड़ों, मगर संदूक में कीड़ों की खुराक बनने के लिए। गरीब खानदान की लड़कियों में यही ऐब होता है कि इनकी निगाह हमेशा तंग रहती है, ना खा सके, ना पहन सके, ना दे सके। इन्हें तो खजाना भी मिल जाए तो यही सोचती रहेंगी कि भला इसे खर्च कैसे करें। दरिया की सैर तो हुई मगर कुछ लुत्फ ना आया। कई माह तक आशा की तबीयत को उभारने की नाकाम कोशिश करके लाला जी ने समझा लिया कि ये मुहर्रम की पैदाइश है, लेकिन फिर भी बराबर मश्क जारी रखी। इस व्यापार में एक खतीर रकम सर्फ करने के बाद वो इससे ज्यादा से ज्यादा नफा उठाने की ताजराना तकाजे को कैसे नजरअंदाज करते। दिलचस्पी की नई नई सूरतें पैदा की जाती। ग्रामोफोन अगर बिगड़ गया है, गाता नहीं या आवाज साफ नहीं निकलती, तो इसकी मुरम्मत करानी पड़ेगी। इसे उठा कर रख देना तो हमाकत है। इधर बूढ़ा महाराज बीमार होकर चला गया था और इसकी जगह इसका 16-17 साल का लड़का आ गया था। कुछ अजीब मुस्कुरा था, बिल्कुल उज्जड़ और दहकानी। कोई बात ही न समझता। इसके फुल्की अकलीफ की शक्लों से भी ज्यादा मुख्तलिफ अशकाल हो जाती। बीच में मोटे, किनारे पतले। दाल कभी तो इतनी पतली जैसे चाय और कभी इतनी गाढ़ी जैसे दही। कभी नमक इतना कम कि बिल्कुल फीका, कभी तो इतना तेज कि नींबू का नमकीन अचार। आशा सवेरे से ही रसोई में पहुंच जाती और इस बदसलीके महाराज को खाना पकाना सिखाती। तुम कितने नालायक आदमी हो जगल, इतनी उम्र तक तुम क्या घास खोदते रहे या भार झोंकते रहे कि फुलके तक नहीं बना सकते। जगल आंखों में आंसू भर के कहता है, बहू जी अभी मेरी उम्र ही क्या है, 17वें साल की तो हूँ। आशा हंस पड़ी, तो रोटियां पकाना क्या 10-20 साल में आता है। आप 1 महीना सिखा दें बहू जी, फिर देखना मैं आपको कैसे फुलके खिलाता हूँ कि आपका जी खुश हो जाएगा। जिस दिन मुझे फुलके बनाने आ जाएंगे मैं आपसे कोई इनाम लूंगा। सालन तो अब कुछ पकाने लगा हूं ना। आशा हौसला अफजा तबस्सुम से बोली, सालन नहीं, दवा पकाना आता है। अभी कल ही नमक इतना तेज था कि खाया ना गया। मैं जब सालन बना रहा था तो आप यहाँ कब थी? अच्छा, तो जब मैं यहाँ बैठी रहूं तब तुम्हारा सालन लजीज पकेगा। आप बैठी रहती हैं तो मेरी अक्ल ठिकाने रहती है, और मैं नहीं रहती तब तो आपके कमरे के दरवाजे पर जा बैठती हैं। तुम्हारे दादा आ जाएंगे तो तुम चले जाओगे। नहीं बहू जी, किसी और के काम में लगा दीजिएगा, मुझे मोटर चलवाना सिखवा दीजिएगा। नहीं नहीं, आप हट जाइए, मैं पतीला उतार लूंगा। ऐसी अच्छी साड़ी आपकी कहीं दाग लग जाए तो क्या होगा? दूर हो फुटो, तुम ही तो हो, कहीं पतीली पर ही ना गिर पड़ो तो महीनों झेलोगे। जगल अफसुर्दा हो गया, नहीफ चेहरा और भी खुश्क हो गया। आशा ने मुस्कुराकर पूछा, मुंह क्यों लटक गया सरकार का? आप डांट देती हैं बहू जी तो मेरा दिल टूट जाता है। सेठ जी कितना ही घड़के, मुझे जरा भी सदमा नहीं होता। आपकी नजर कड़ी देखकर जैसे मेरा खून सर्द हो जाता है। आशा ने तशफी दी, मैंने तुम्हें डांटा नहीं, सिर्फ इतना ही कहा है कि कहीं पतीला तुम्हारे पांव पर ना गिर पड़े तो क्या होगा? हाथ तो आपका भी है, कहीं आपके हाथ ही ना छूट पड़े। सेठ जी ने रसोई के दरवाजे पर आकर कहा, आशा जरा यहाँ आना, देखो तुम्हारे लिए कितने खुशनुमा गमले लाया हूँ। तुम्हारे कमरे के सामने रखे जाएंगे, तुम वहाँ धुएं रखकर में क्या परेशान हो रही हो? लौंडे को कह दो कि महाराज को बुलाए, वरना मैं कोई दूसरा इंतजाम कर लूंगा। महाराज की कमी नहीं है, आखिर कब तक कोई रियायत करे? इस गधे को जरा भी तो तमीज ना आई। सुनता है जगल, आज लिख दे अपने बाप को। चूल्हे पर तो रखा हुआ था। आशा रोटियां बेल रही थी, जगल तवे को लिए रोटियों का इंतजार कर रहा था। ऐसी हालत में भला वो कैसे गमले देखने जाती? कहने लगी, अभी आती हूँ, जरा रोटी बेल रही हूँ। छोड़ दूंगी तो जगल टेढ़ी मेढ़ी बेलेगा। लाला जी ने कुछ चढ़कर कहा, अगर रोटियां टेढ़ी मेढ़ी बेलेगा तो निकाल दिया जाएगा। आशा अनसुनी कर बोली, 10-5 दिन में सीख जाएगा, निकालने की क्या जरूरत है? तुम चलकर बता दो गमले कहाँ रखे जाएंगे। कहती हूँ रोटियां बेल कर आ जाती हूँ। नहीं, मैं कहता हूँ तुम रोटियां मत बेलो, तुम ख्वाम ख्वाह जिद करते हो।
लाला जी सन्नाटे में आ गए। आशा ने कभी इतनी बेइत्तेफाकी से इन्हें जवाब न दिया था, और ये महज बेइत्तेफाकी थी, इसमें तुर्शी भी थी। खफीफ होकर चले गए। इन्हें गुस्सा ऐसा आ रहा था कि इन गमलों को तोड़कर फेंक दें और सारे पौधों को चूल्हे में डाल दें। जगल ने सहमे हुए लहजे में कहा, आप चली जाती बहू जी, सरकार नाराज होंगे। बको मत, जल्दी रोटियां सेको, नहीं तो निकाल दिए जाओगे। और आज मुझसे रुपए लेकर अपने लिए कपड़े बनवा लो। भग मांगूंगी सी सूरत बनाए घूमते रहते हो, और बाल क्यों इतने बड़े हुए हैं, तुम्हें नाई भी नहीं चढ़ता। कपड़े बनवा लूं तो दादाजी को क्या हिसाब दूंगा। अरे बेवकूफ, मैं हिसाब नहीं देने को कहती, मुझसे ले लेना। आप बनवाएंगी तो अच्छे कपड़े लूंगा मैं, खद्दर का कुर्ता, खद्दर की धोती, रेशमी चादर और अच्छा सा चप्पल। आशा ने मिठास भरे तबस्सुम से कहा, और अगर अपने दाम से बनवाना पड़े तो तब कपड़े बनवाऊंगा ही नहीं। बड़े चालाक हो तुम। आदमी अपने घर पर रूखी रोटी खास कर सो जाता है, लेकिन दावत में अच्छे अच्छे पकवान ही खाता है। ये सब मैं नहीं जानती। एक गाढ़े का कुर्ता बनवा लूं और एक टोपी हिजामत के लिए 2 आने पैसे ले लूं। रहने दीजिए, मैं नहीं लेता। अच्छे कपड़े पहनकर निकलूंगा तो आपकी याद आएगी। सड़ियल कपड़े हुए तो जी जलेगा। तुम बड़े खुदगर्ज हो, मुफ्त के कपड़े लोगे और आला दर्जे के। जब यहाँ से जाने लगूंगा तो आप मुझे अपनी तस्वीर दे दीजिएगा। मेरी तस्वीर लेकर क्या करोगे? अपनी कोठरी में लगाऊंगा और देखा करूंगा बस वही साड़ी पहनकर खिंचवाना जो कल पहनी थी, और वही मोतियों वाला माला भी हो। मुझे ऐसी आपकी सूरत अच्छी नहीं लगती। आपके पास तो बहुत गहने होंगे, आप पहनती क्यों नहीं हैं? तो तुम्हें गहने अच्छे लगते हैं बहुत। लाला जी ने खिफत आमेज लहजे में कहा, अभी तक तुम्हारी रोटियां नहीं पकी। जगल, अगर कल से तुमने अपने आप रोटियां ना बनाई तो मैं तुम्हें निकाल दूंगा। आशा ने फौरन हाथ धोए और बड़ी मुसरत आमेज तेजी से लाला जी के साथ जाकर गमलों को देखने लगी। आज इसके चेहरे पर गैर मामूली शगुफ्तगी नजर आ रही थी। इसके अंदाजे गुफ्तगू में भी दिलावेज शीरनी थी। लाला जी की सारी खफत गायब हो गई। आज इसकी बातें जुबान से नहीं दिल से निकलती हुई मालूम हो रही थी। बोली, मैं इनमें से कोई गमला न जाने दूंगी, सब मेरे कमरे के सामने रखवाना। सब कितने सुंदर पौधे हैं, वाह, इनके हिंदी नाम भी बता देना। लाला जी ने छेड़ा, सब लेकर क्या करोगी? 10-5 पसंद कर लो, बाकी बाहर बागीचे में रखवा दूंगा। जी नहीं, मैं एक भी नहीं छोड़ूंगी, सब यहीं रखे जाएंगे। बड़ी हरीस हो तुम। हरीस सही, मैं आपको एक भी नहीं दूंगी। 10-5 तो दे दो, इतनी मेहनत से लाया हूँ। जी नहीं, इनमें से एक भी नहीं मिलेगा। दूसरे दिन आशा ने अपने आप को जेवरों से खूब आरास्ता किया और फिरोजी साड़ी पहनकर निकली तो लाला जी की आंखों में नूर आ गया। अब इनकी आशिकाना दिलजोइयों का कुछ असर हो रहा है जरूर, वरना इनके बार बार तकाजा करने पर, मिन्नत करने पर भी इसने कोई जेवर न पहना। कभी कभी मोतियों का हार गले में डाल लेती थी, वो भी बेदिली से। आज इन जेवरों से खुद को आरास्ता किए वो फूली नहीं समाती थी, इतराती जा रही थी। गोया कहती है, देखो मैं कितनी हसीन हूँ, पहले जो कली थी वो आज खिल गई। लाला साहब पर घरों का नशा चढ़ा हुआ है। वो चाहते हैं कि इनके अहबाब वाइजा आकर इस सोने की रानी के दीदार से अपनी आंखें रोशन करें, देखें कि इनकी जिंदगी कितनी पुरलुत्फ है। जो अनवाओ इकसाम के शकूक दुश्मनों के दिलों में पैदा हुए थे, आंखें खोलकर देखें कि एतमाद, रवादारी और फरासत ने कितना खुलूस पैदा कर दिया है। इन्होंने तजवीज़ की, चलो कहीं सैर कराएं, बड़ी मज़ेदार हवा चल रही है। आशा इस वक्त कैसे आ सकती है? अभी से रसोई जाना है, वहाँ से कहीं 12 से 1 बजे तक फुर्सत मिलेगी, फिर घर के काम धंधे सर पर सवार हो जाएंगे। इससे कहाँ फुर्सत है? फिर कल से इसके कलेजे में कुछ दर्द भी हो रहा है, रह रह कर दर्द उठता है। ऐसा दर्द कभी ना होता था, रात ना जाने क्यों दर्द होने लगा। सेठ जी एक बात सोचकर दिल ही दिल में फूल उठे कि वो गोलियां रंग ला रही थी। राजवीर ने आखिर कहा भी था कि जरा सोच समझकर इसका इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि ये ना हो कि खानदानी वीद है। इसका बाप महाराजा बनारस का मुआलिज था, पुराने मुजर्रिब नुस्खे हैं इसके पास। चेहरे पर सरासमगी का रंग भटकर पूछा, तो रात से ही दर्द हो रहा है? तुमने मुझसे कहा नहीं, वरना वीर जी से कोई दवा मंगवा देता। मैंने समझा था कि आप अपने आप ही अच्छा हो जाएगा, मगर अब बढ़ रहा है। कहाँ दर्द हो रहा है, जरा देखूं तो। कुछ आमाज तो नहीं है? सेठ जी ने आशा के आंचल की तरफ हाथ बढ़ाया। आशा ने शर्मा कर सर झुका लिया और बोली,
यही तुम्हारी शरारत मुझे अच्छी नहीं लगती, जाकर कोई और दवा ला दो। सेठ जी अपनी जवां मर्दी का ये डिप्लोमा पाकर इससे कई ज्यादा महसूस हुए जितना शायद राय बहादुरी का खिताब पाकर होती। अपने इस कारनुमाइयां की दाद लिए बगैर इन्हें कैसे चैन हो जाता। जो लोग उनकी शादी से मुतल्लिक शुबा में सरगोशियां करते थे, इन्हें जिज कर देने का कितना नादिर मौका हाथ से आया। पहले पंडित भोलानाथ के घर पहुंचे और बादल दर्दमंद बोले, मैं तो भाई सख्त मुसीबत में मुब्तला हो गया। कल से इनके सीने में दर्द हो रहा है, कुछ अकल काम नहीं करती। कहती ऐसा दर्द पहले कभी नहीं हुआ। भोलानाथ ने इन्हें कुछ ज्यादा हमदर्दी का इजहार नहीं किया। बोले, हवा लग गई होगी और क्या। सेठ जी ने इनसे इख्तलाफ किया, पंडित जी हवा का फसाद नहीं है, कोई अंदरूनी शिकायत है। अभी कमसन है ना, राजवीर से कोई दवा ले आता हूँ। मैं तो समझता हूँ आपने आप ही अच्छा हो जाएगा। आप बात नहीं समझते, यही आप में नुक्स है। आपका जो ख्याल है वो बिल्कुल गलत है, मगर खैर कर दीजिए और अपने लिए भी दवा लेते आइएगा। सेठ यहाँ से उठकर अपने दोस्त लाला भाग से मिलकर अब उसके पास पहुंचे और उनसे भी करीब इन्हें अल्फाज में पुरमलाल खबर कही। भागमल बहुत बड़ा शोहदा था, मुस्कुराकर बोला, मुझे तो आपकी शरारत मालूम होती है। सेठ जी की बातें फिर गई। मैं अपना दुख सुना रहा हूँ और तुम्हें मजाक सूझता है, जरा भी इंसानियत तुम में नहीं है। मैं मजाक नहीं कर रहा, भला इसमें मजाक की क्या बात है। वो है कमसन, नाजुक, आप ठहरे आजमूदाकार, मर्द मैदान। बस अगर ये बात ना निकले तो मुझे मंडवा डालूं। सेठ जी ने मतीन सूरत बनाई। मैं तो भाई बड़ी एहतियात करता हूँ, तुम्हारे सर की कसम। जी रहने दीजिए, मेरे सर की कसम ना खाइए, मेरे भी बाल बच्चे हैं, घर का अकेला आदमी हूँ, किसी काते दवा का इस्तेमाल कीजिए। इन्हें राजवीर से कोई दवा ले लेता हूँ, इसकी दवा दी जिसके पास नहीं आपके पास है। सेठ जी की आंखों में नूर आ गया, शबाब का एहसास पैदा हुआ और इसके साथ चेहरे पर भी शबाब की झलक आ गई। सीना जैसे कुछ फराक हो गया। चलते वक्त इनके पैर कुछ ज्यादा मजबूती से जमीन पर पड़ने लगे और सर की टोपी भी खुदा जाने क्यों कज हो गई। बिशरे से एक बांगपन की शान बरस रही थी। राजवीर से मुर्सा जानफजा सुनाया हुआ तो बोले, मैंने कहा था जरा सोच समझकर इन गोलियों का इस्तेमाल कीजिएगा। आपने मेरी हदायत पर तवज्जो ना की। जरा महीने 2 महीने इनका इस्तेमाल कीजिए और परहेज के साथ रहिए, फिर देखिए इनका एजाज। अब गोलियां बहुत कम रही हैं और लूट मची रहती है, लेकिन इनका बनाना इतना मुश्किल और दिक्कत तलब है कि एक बार ख़त्म हो जाने पर महीनों तैयारी में लग जाते हैं। हज़ारों बूटियां हैं, कैलाश, नेपाल और तिब्बत से मंगानी पड़ती हैं और इसका बनाना तो आप जानते हैं कितना लोहे के चने चुबाना है। आप एहतियातन एक शीशी लेते जाएं। जगल ने आशा को सर से पांव तक जगमगाते देखकर कहा, बस बहू जी आप इस तरह पहने ओढ़े रहा करें, आज मैं आपको चूल्हे के पास ना आने दूंगा। आशा ने शरारत अमेज नजरों से देखकर कहा, क्यों आज ये सख्ती क्यों? कई दिन तो तुमने मना नहीं किया, आज की बात दूसरी है। जरा सुनो तो क्या बात है। मैं डरता हूँ कि कहीं आप नाराज ना हो जाएं। नहीं नहीं कहो, मैं नाराज नहीं होंगी। आप आज बहुत सुंदर लग रही हैं। लाला डंगा मिल ने सैकड़ों ही बार आशना के हुस्न अंदाज की तारीफ की थी, मगर इनकी तारीफ में इस तसना की बू आती थी। वो अल्फाज इनके मुंह से कुछ इस तरह से लगते थे जैसे कोई हिजरा तलवार लेकर चले। जगल ने इन अल्फाज में एक कीफ था, एक सरवर था, एक हिजान था, एक इस्तराब था। आशा के सारे जिस्म में राशा आ गया, आंखों में जैसे नशा छा गया जाए। तो मुझे नजर लगा दोगे, इस तरह क्यों घूरते हो? जब यहाँ से चला जाऊंगा तो तब आपकी बहुत याद आएगी। रोटी बनाकर तुम क्या करते हो, दिखाई नहीं देते? सरकार रहते हैं इसलिए नहीं आता। फिर अब तो मुझे जवाब मिल रहा है, देखिए भगवान कहाँ ले जाते हैं। आशा का चेहरा सुर्ख हो गया। कौन तुम्हें जवाब देता है? सरकार ही तो कहते हैं तुझे निकाल दूंगा। अपना काम किए जाओ, कोई नहीं निकालेगा। अब तो तुम रोटियां भी अच्छी बनाने लगे। सरकार है बड़े गुस्सावर, 2-4 दिन में इनका मिजाज ठीक किए देता हूँ। आपके साथ चलते हैं तो जैसे आपके बाप से लगते हैं। तुम बड़े बदमाश हो, खबरदार जुबान संभाल कर बातें करो। मगर खफी का ये पर्दा इसके दिल का राज ना छुपा सका। वो रोशनी की तरह इसके अंदर से बाहर निकलना पड़ता था। जगल ने ऐसी बेबाकी से कहा, मेरी जुबान कोई बंद कर ले। यहाँ तो सभी कहते हैं मेरा ब्याह कोई 50 साल की बुढ़िया से कर दे तो मैं घर छोड़कर भाग जाऊं या खुद जहर खा लूं या इसे जहर देकर मार डालूं, फांसी ही तो होगी। आशा मसनूई गुस्सा कायम न रख सकी। जगल ने इसके दिल के तारों पर
मुस्तराब सी एक चोट मारी थी। इसके बहुत से मजबूत करने पर भी दर्द दिल बाहर निकल आया। किस्मत भी तो कोई चीज़ है, ऐसी किस्मत जाए जहन्नुम में। तुम्हारी शादी किस बुढ़िया से करूंगी, देख लेना। तुम्हें भी जहर खा लूंगा, देख लीजिएगा। क्यों? बुढ़िया तुम्हें जवान से ज़्यादा प्यार करेगी, ज़्यादा खिदमत करेगी, तुम्हें सीधे रास्ते पर रखेगी। ये सब माँ का काम है। बीवी जिस काम के लिए है उसके लिए है। आखिर बीवी किस काम के लिए है? आप मालिक हैं नहीं तो बतला देता किस काम के लिए है। मोटर की आवाज़ आई। न जाने कैसे आशा की सर का आंचल खिसक कर कंधे पर आ गया था। इसने जल्दी से आंचल सर पर खींच लिया और ये कहती हुई अपने कमरे की तरफ चली गई, लाला खाना खाकर चले जाइए, तुम जरा आ जाना।